मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे लाइव हैं, कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं और इंदौर में ये भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं। भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का शुभारंभ कार्यक्रम। Giovanni Amarella, Ambassador of Uruguay to India and the head of BRULAC. Shri Tulsiram Silawat ji, Honorable Minister, Water Resources Department, Government of Madhya Pradesh. Shri Shankar Lalwani ji, Honorable Member of Parliament, Indore. Shri Raghavendra Kumar Singh ji, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, and Dr. Jitendra Joshi, Founder and Global President of Global India Business Forum, to kindly proceed for the lighting of the ceremonial lamp. तो निवेश का ये नया मंच जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। व्यापार एवं निवेश फोरम का शुभारंभ हो रहा है, दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, अन्य जनप्रतिनिधि, इसके साथ ही भारत लैटिन अमेरिका फोरम का ये शुभारंभ कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो निवेश के नए आयाम हैं उसको बढ़ाने के लिए 350 से अधिक इसमें निवेशक शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है सरकार की, जिस तरह से प्रदेश के विकास के लिए नित नए कीर्तिमान स्थापित मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और कार्यक्रम में भारत लैटिन अमेरिका फोरम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है। मध्य प्रदेश के निवेश अवसरों पर वैश्विक प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 350 से अधिक निवेशक और उद्योग। Ladies and gentlemen, it is now our honor and privilege to felicitate our chief guest, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. May I invite Dr. Jitendra Joshi, Founder and Global President, Global India Business Forum, to kindly felicitate the Honorable Chief Guest. Can we please have a huge round of applause? Thank you so much, sir. Now, may I invite Shri Raghavendra Kumar Singh, sir, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to kindly felicitate His Excellency Alberto Antonio Giovanni Amarella, Ambassador of Uruguay to India and the Dean of BRULAC. May I respectfully request Your Excellency Thank you so much, Excellency. May I now invite Dr. Jitendra Joshi, Founder and Global President, Global India Business Forum, to kindly felicitate Shri Tulsiram Silawat ji, Honorable Minister, Water Resources Department, Government of Madhya Pradesh. Thank you, sir. May I request Dr. Joshi
to kindly felicitate Shri Shankar Lalwani ji, Honorable Member of Parliament, Indore. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, the presence of a distinguished diplomatic community reflects the growing strength of India, Latin America and Caribbean relations. May I request Shri Raghavendra Kumar Singh ji to felicitate His Excellency Javier Manuel Polanich Velarde, Ambassador of Peru to India. His Excellency Alonso Correa Miguel, Ambassador of Panama to India. His Excellency Guillermo Rubio Funes, Ambassador of El Salvador to India. His Excellency Juan Carlos Marsan Aguilera, Ambassador of Cuba to India. His Excellency Omar Lisandro Solares, Ambassador of Guatemala to India. Can we please have a huge round of applause for all our dignitaries on the dais? His Excellency Dharam Kumar Seeraj, High Commissioner of Guyana. तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप मंच पर देख रहे हैं। निवेशकों का सम्मान हो रहा है और ये जो व्यापारी हैं, निवेशक हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, मध्य प्रदेश की धरती को समझ रहे हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर सुविधाएं। 7% of India's organic crops and as many as 11 agro-climatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 8 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by world heritage sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India.
where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Madhya Pradesh today stands as one of India's fastest growing investment destinations, offering immense opportunities across various sectors. To present the state's vision and investment opportunities, may I invite Shri Raghavendra Kumar Singh Ji, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, to deliver his presentation. Sir, the floor is yours. Vande Mataram. Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister for Water Resources Shri Tulsiram Silawat ji, Honorable Member of Parliament Shri Shankar Lalwani ji, His Excellency Mr. Alberto Guani, Dean of GRELEC, and distinguished ambassadors. I will take name of some of them over there on the dais. On His Excellency Juan Carlos Marzani Aguilera, Ambassador of Cuba to India. His Excellency Rubio Funes Guillermo, Ambassador of Embassy of El Salvador. His Excellency Ambassador of Republic of Panama to India. His Excellency Alberto Antonio Guani Amarilla, Ambassador of Uruguay to India. His Excellency Omar Lisandro Casataneda Solares, Ambassador of Republic of Guatemala. His Excellency Javier Manuel Pelanich Velarade, Ambassador of Peru. His Excellency Adolfo Garcia Estrada, Consul General of Mexico. Dr. Jitendra Joshi ji and Dharam Kumar Siraj ji. Now, it's my pleasure to welcome all of you to this August ceremony in presence of Honorable Chief Minister and His Excellency from Latin America and Caribbean. In next few minutes, I will showcase the case of Madhya Pradesh, where we can have big opportunities in trade, investment and partnering with Latin America and Caribbean countries. You know that Madhya Pradesh is the heart of incredible India. Can we run the presentation, please? So, Madhya Pradesh is the heart of incredible India. But let me take you to the journey of India and Latin America and Caribbean economy and trade relations. The trade between these two blocks is around $42 billion, out of which exports from India to LSE is $16.4 billion and export from LSE to India is $25.6 billion. Main items which are from India, basically we go for auto components, mining and metals, food, agriculture, IT, software, engineering. Indian FDI sectors in LSE is in IT, software, pharmaceuticals, agrochemicals, mining and steel, renewable energy and automobile. Come to next place. Now, Madhya Pradesh has got a big role in LSE countries regarding the kind of exports. We have touched around $500 million mark in 25-26 financial year. Our export basically consist of machinery and mechanical appliances, pharma products, organic chemicals, cotton and other pharma kinds of products. So basically the CAGR is very good, from $381.3 million to $433.7 billion in just 1 year. So growth rate is very high. Now next page please. We take the case of Madhya Pradesh. We know that Madhya Pradesh is the heart of incredible India. So anytime if you want to do investment in India,
Madhya Pradesh is logistically ideally located in at the center of India. We have north-south corridor, Agra-Mumbai National Highway, Delhi-Mumbai Expressway, east-west corridor, Agra-Jaipur Expressway, Agra-Kanpur Expressway. You can see the kind of connectivity from Madhya Pradesh, and major highways and corridors pass through Madhya Pradesh. We have 6 inland container depots, 22 good railway junctions, 1 multimodal logistic park, and we have 8 airports. So we have a very good, excellent kind of connectivity from here to all across the India. Coming to Madhya Pradesh is second largest province in India, and our area is 308 square kilometers, second largest provincial area in entire country. We have largest forest cover, more than 77.5 thousand square kilometers. We are second largest producer of wheat in country, 23 million metric ton in FY25. Second largest producer of food grains in country, more than 46.6 million metric ton. We have won, Indore has the pleasure of getting continuous cleanliness award. You are sitting in the India's cleanest city, that is known as Indore, here in Madhya Pradesh, and our state is one of the cleanest state in entire country. We are the 5th largest consumer market. We have more than 88 million consumers here in Madhya Pradesh. God has blessed us with the opportunity in mining sector. We are leading producer of diamond, copper and manganese. We are amongst the top 3 cement producing state. We have a big chunk of limestone presence in our state. We have a very big producer of coal. We have thickest coal seam in entire Asia. Come next, please. In Madhya Pradesh, we have got a very robust infrastructure which is enabling growth in a double-digit mode. We have more than 340 notified industrial area all across the state. We have abundance of power and industrial water supply. Our power is around 31 per gigawatt of electricity, and around 1/5 of that is from renewable energy sources. We give industrial water supply at a very affordable rate, and we have more than 1,000 million cubic meter of industrial water supply. We have excellent ease of living in our state. We have very cheap factors of production. We have an excellent road network, more than 510,000 kilometers of excellent road network, and we have a very good digitized IT system. We have GIS enabled real-time online industrial land bank. We allot lands in a very robust manner. We have more than 200,000 graduates passing out every year, and we have very low attrition rate. Come next, please. So, in case of Madhya Pradesh, we provide लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच के इस 2026 के मुख्य आयोजन में मंच पर विराजमान महामहिम अल्बर्टो गुआनी उरुग्वे राजदूत, आपका स्वागत है। महामहिम खुआन कार्लोस मार्सान भारत में क्यूबा के राजदूत, महामहिम गुइलेर्मो रूबियो फुनेस भारत में एल साल्वाडोर के राजदूत, महामहिम अलोंसो कोरे भारत में पनामा के राजदूत, महामहिम धर्म कुमार सिराज भारत में गुयाना के राजदूत, ओमार कास्तेना भारत में ग्वाटेमाला के राजदूत, जेवियर पालनिक भारत में पेरू के राजदूत, एडोल्फ गार्सिया भारत में मेक्सिको के महावाणिज्य दूत। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी,
मंच के सामने आसीन सुनैना मोहन जी भारत में सूरीनाम के प्रभारी राजदूत हैं, श्री लुकास वाल्डेरामा जी, हार्के लोयलो कास्त्रो भारत में अध्यक्ष। इस अवसर पर समस्त अतिथिगण, इस आयोजन के निमित्त अलग अलग क्षेत्रों से पधारे सभी स्वनाम धन्य हस्तियां, आज का ये मौका खासकर मध्य प्रदेश में मां देवी अहिल्या की इस नगरी में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार निवेश मंच के माध्यम से आज का ये दौर खासकर बदलते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ बदलते समय में व्यापार व्यवसाय के जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आप सबके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस नाते से भी जब भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आप इस पावन धरती पे आए तो ये हमारे कई कारण से इंदौर की धरती एक विशेष स्थान रखती है। भारत की सबसे स्वच्छ नगरी अगर कोई है तो इंदौर है हमारे लिए। स्वच्छता भी और स्वाद की नगरी भी। समय मिलेगा तो यहाँ 56 दुकान का भी आनंद लेने आप जाना। यहाँ के कई कारणों से व्यापार व्यवसाय में भी मध्य प्रदेश की दृष्टि से आर्थिक रूप से भोपाल राजनीतिक राजधानी हो सकती है, प्रशासनिक राजधानी हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्धि का आधार मध्य प्रदेश का अगर कोई है तो ये मां अहिल्या की नगरी का इंदौर का गौरव। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है 18वीं सदी में स्थापित लोकमाता अहिल्याबाई ने इस होलकर साम्राज्य के माध्यम से जिस प्रकार से अपने राज्य के बलबूते पर देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी सभी प्रकार के अनुकूलताओं के बीच सुशासन की उच्चतम मापदंड स्थापित करते यहाँ की अनुकूलता बनाई। और वैसे तो ये मालवा की धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से अशोक के काल तक और अशोक के काल से राजा भोज के काल तक हर काल में मालवा व्यापार व्यवसाय की ये माल वालों की नगरी के नाते से भी जानी जाती है। इसकी समृद्धि अपने यहाँ के उच्चतम आदर्शों के बलबूते पर उन्नत व्यापार व्यवसाय के लिए कई इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। जब यहाँ सिल्क रूट के माध्यम से बड़े पैमाने पर दुनिया भर से व्यापार व्यवसाय होता था। ऐसे में साथियों एटलस में भले ही अलग अलग देशों की दूरियां दिखाई देती है, लेकिन सच में अब हजारों किलोमीटर की दूरी और ये जो वर्तमान का समय है आज के इस दौर में व्यापार व्यवसाय के लिए अब आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर बहुत सिमट गया है। ऐसे समय में जब मैं लैटिन अमेरिका की प्राचीन संस्कृति के मदर अर्थ की तरफ देखता हूं तो पचमामा को पूजा वैसे ही हम अपने पंच तत्वों के प्रकृति को कण कण की तरह पूजते हैं। यह हमारी आपकी निकटता भी है, यह हमारी आपकी परंपराओं में आपस में नजदीक भी लाती है। हमारे उत्सवों का उल्लास, संगीत के प्रति हमारा अनुराग, पारंपरिक ताना बाना, हमारी जनजाति कलाओं की जीवंतता इत्यादि कई कारणों से हमारे बीच भौगोलिक दूरियां भले ही हो, लेकिन हमारे जीवन मूल्य और संस्कार एक समान है। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश को भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच सहयोग के लिए इस महत्वपूर्ण मंच पर मेजबानी का अवसर मिला है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है यहाँ पर कई नई आर्थिक साझेदारियां और नई संभावनाओं का एक नया सेतु बनने जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है आज आप अमृत काल में हमारे बीच पधारे और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विशेष लंबे दूर के लक्ष्य के साथ विशेष आग्रह के आधार पर अपनी सभी क्षमता, योग्यता और विशेषताओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपनी वैश्विक अनुकूलताओं के बलबूते पर व्यापार व्यवसायों के साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है तो आपके यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है। और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है। फार्मास्यूटिकल,
इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, जंबो बैग, कृषि आधारित उत्पाद, विनिर्माण क्षेत्र, ऐसे कई मामलों में निर्यात की हमारी प्रमुख ताकत है। ब्राजील, मेक्सिको, चिली, डोमिनिकन और अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, ऐसे कई प्रमुख देशों के साथ आज मध्य प्रदेश अपने मेड इन मध्य प्रदेश को मिल रहे स्नेह और स्वीकार्यता का उच्चतम प्रमाण के रूप में सामने है। एलएसी के देश कृषि और खास करके खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उन्नत स्वास्थ्य, फार्मा, आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, खनन, लॉजिस्टिक, ऐसे कई क्षेत्रों में मिलकर एक इतिहास रच सकते हैं। जब मैं आप क्रेता विक्रेता, आयातक निर्यातकों के बीच बढ़ते हुए साझेदारी के तरफ देखता हूं तो सच में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के बलबूते पर उन्नत प्रौद्योगिकी के आधार पर हम एक नई ऊंचाई तक जा सकते हैं। इंदौर पीथमपुर फार्मास्यूटिकल्स का वैश्विक हब है। हमारी दवाएं इस बड़े बाजार को ब्राजील, पेरू और चिली तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही क्यूबा विश्व प्रसिद्ध बायोटेक एवं फार्मा अनुसंधान के साथ मिलकर चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार के लिए एक अलग प्रकार का वातावरण उपलब्ध करा रहा है। खासकर पीथमपुर तो एक अलग ही हमारे लिए वर्तमान के समय में कई कारणों से सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, मजबूत इंडस्ट्रियल पैकिंग और खास करके निर्यात के मामले में उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की ये एक तरह से प्रमुख रीढ़ की हड्डी की तरह है। मेक्सिको में चल रहे ऑटो नियर शोरिंग के इस दौर में ब्राजील की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए मध्य प्रदेश सबसे भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी सप्लाई चेन पार्टनर की भूमिका निभा सकता है। इंदौर आज सबसे तेजी से बढ़ते हुए आईटी स्टार्टअप हब्स में से एक है। मेक्सिको के आईटी इकोसिस्टम, डोमिनिकन गणराज्य के पर्यटन टेक और इक्वाडोर के उभरते फिनटेक परिदृश्य के लिए हमारे पास कुशल और नवाचारी युवा उपलब्ध है। आपकी वैश्विक मांगों की पूर्ति करेंगे। कृषि क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार की देश भर में अपनी पहचान बना रहा है और कई मामलों में तो मध्य प्रदेश फूड बास्केट के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के एक अलग ताकत के नाते से इसकी पहचान बनी है। अर्जेंटीना और ग्वाटेमाला की मजबूत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकों के आधार पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़े संयुक्त प्रयास करने की यहाँ संभावना बन सकती है। ब्राजील, मेक्सिको, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया के साथ निरंतर बढ़ता व्यापार मध्य प्रदेश पर अटूट भरोसे का प्रमाण है। कई कारण से परमात्मा की कृपा भी मध्य प्रदेश पे कुछ अलग ही है। जैव संपदा, खनिज संपदा, ऊर्जा और ऐसे कई सेक्टर में, खासकर भी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की अपनी एक पहचान बनी है। चिली और पेरू के खनिज भंडारों और वेनेजुला के ऊर्जा संसाधनों के बलबूते पर इंजीनियरिंग मशीनों की सप्लाई के आधार पर मध्य प्रदेश एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है। स्थिर और पारदर्शी निवेश नीतियों के बलबूते पर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक अलग अपनी पहचान बनाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के संकल्प के साथ हम अपने दूरदर्शी मॉडल को दुनिया के सामने रखने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का प्रमुख हब बन चुका है। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हमारा सुदृढ़ सड़क नेटवर्क है। अत्याधुनिक रेल हवाई कनेक्टिविटी की ने यातायात के लिए एक सुगमता का नया इतिहास बनाया है। हमारे आने वाले 5 वर्षों में 6 प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। मालवा से बुंदेलखंड और निमाड़ से विंध्य तक कनेक्टिविटी लगातार मजबूत की जा रही है। विद्युत सरप्लस हमारे पास अलग से है। 31,000 मेगावाट से अधिक की विद्युत क्षमता, जिसमें 30% क्लीन एनर्जी का हमारा अपना रिकॉर्ड है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सर्वाधिक हीरा, मैग्नीज, चूना पत्थर जैसी खनिज संपदा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधन और जल रचना
ये जो उद्योग की महत्वपूर्ण रीढ़ होती है, ये हमारे पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी देश में बेमिसाल है। 6000 से अधिक स्टार्टअप हमारे प्रदेश के अंदर 45% से अधिक महिलाओं द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित कार्य के लिए कई कारण से मध्य प्रदेश कई कारण से सारे उद्योग व्यापार व्यवसाय की और परमात्मा की विशेष कृपा भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से ये व्यापार व्यवसाय की कई अनुकूलता बनाता है। हमारे यहाँ पर लाइन ऑर्डर को लेकर भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेबर के मामले में भी भाग्यशाली है, कभी यहाँ आंदोलन इस प्रकार से नहीं होते। मध्य प्रदेश जो एक बार आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मध्य प्रदेश सबको अपनाने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश प्यार बांटने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश लोगों को लेके चलने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश के माध्यम से व्यापार व्यवसाय की अनुकूलता बाबा महाकाल की कृपा से हजारों हजार साल से निर्बाध गति से जारी है। आइए हम सब बदलते दौर में प्रदेश की ताकत के साथ मध्य प्रदेश देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके वैश्विक व्यापार के लिए अपनी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध है। एक बार फिर मैं भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार के इस निवेश मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हृदय से आपका धन्यवाद।